నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఎన్ బిజినెస్. ఇప్పుడు సూరత్ ఎవరు వెళ్ళినా కూడా ఒక పేరు చాలా గట్టిగా వినిపిస్తోంది, అదే అజ్మీరా ఫ్యాషన్స్. సో అజ్మీరా ఫ్యాషన్స్ ఇంత పేరు ప్రఖ్యాతులు గెలుచుకోవడానికి, అంతమంది కస్టమర్లను హృదయాలను చూరగొనడానికి ఇక్కడ రీజన్స్ ఏంటి అంటే వాళ్ళ దగ్గర ప్రైసెస్ ఎలా ఉన్నాయి, కస్టమర్ని వాళ్ళు ఎలా డీల్ చేస్తారు, కస్టమర్ సర్వీస్ని ఎలా అందిస్తారు, లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా అధిగమిస్తారు, అక్కడికి వచ్చే ఎవరైతే కొనడానికి వస్తారో వాళ్ళకి ఎటువంటి భరోసాని ఇస్తారు, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుందాం. ఎందుకంటే ఈరోజు అజ్మీరా ఫ్యాషన్ పేరు చాలా బాగా వినిపిస్తోంది. ఎవరు ఇవ్వనటువంటి కస్టమర్ సపోర్ట్ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతోంది. అసలు అజ్మీరా ఫ్యాషన్లో రేట్లు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి, ఎంతవరకు వెళ్తాయి, అవి మనం పర్చేస్ చేస్తే మనకు వచ్చిన లాభం ఏంటి, ఇలాంటి విషయాలని తెలుసుకుందాం. అండ్ ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు అజ్మీరా ఫ్యాషన్స్ CEO అజయ్ అజ్మీరా అండ్ శ్రీకాంత్ గారు. సో లేట్ చేయకుండా ప్రోగ్రామ్ని స్టార్ట్ చేసేద్దాం. నమస్తే జీ. नमस्ते मैम. ఎలా ఉన్నారు? హౌ యూ? एकदम बढ़िया, बल्ले बल्ले मस्त. ఫుల్ జోష్. यस 100% हाई जोश. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అజ్మీరా ఫ్యాషన్స్లో స్టార్టింగ్ ప్రైస్ కిतना है? సో దాని గురించి ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. अजमेरा फैशन में एक्चुअली बहुत सारे प्रोडक्ट हैं ना. अगर मैं स्टार्टिंग प्राइस की बात करूं तो हैंकी से स्टार्ट होता है हमारे यहाँ. और हैंकी की बात करूं तो 13 रुपीज़ से स्टार्ट है. किड्स वियर की बात करूं तो 18 रुपीज़ से किड्स वियर स्टार्ट है. कुर्तीज़ की बात करूं तो 68 रुपीज़ से कुर्ती स्टार्ट है. 68? यस, कुर्ती टॉप्स. और अगर साड़ी की मैं बात करूं तो 99 रुपीज़ से साड़ी स्टार्ट है हमारे यहाँ. 99 रुपीज़ से 45,000 रुपीज़ तक का लहंगा वगैरह सब इसके बीच में आ जाता है. रेंज अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रेंज है. पत्तू साड़ी की बात करूं तो मैं ये समझिए 300 रुपए से 350 रुपए से स्टार्ट हो जाती है. कांजीवरम साड़ी, बनारसी साड़ी 450-500 रुपए से स्टार्ट हो जाती है. 600 रुपए से स्टार्ट हो जाती है. तो रेंज वाइड रेंज है, बहुत ज़बरदस्त. पूरा वन स्टॉप डेस्टिनेशन है अजमेरा फैशन, जहाँ पे आपको साड़ी, कुर्ती, लेगिंग्स, पेटीकोट, ब्लाउज, फॉल, मेंस वियर, किड्स वियर, हर रेंज आपको एक रीजनेबल प्राइस में मैन्युफैक्चरिंग प्राइस के अंदर मिल जाती है. ఓకే శ్రీకాంత్ గారు, ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కస్టమర్కి మీరు కల్పిస్తే కనుక అక్కడ ఉన్న స్టాక్ అంతా కూడా వారికి కొనాలనిపిస్తుంది. అంతాని కాకపోయినా వాళ్ళ ఒక బడ్జెట్తో వస్తారు, బట్ ఇలా ఉన్నప్పుడు బడ్జెట్ని మించి కూడా కొనుగోలు చేస్తూ ఉంటారు చాలా మంది. సో అలాంటప్పుడు హ్యూజ్ అయిపోతుంది కదా, వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వాటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ట్రాన్స్పోర్ట్లో మీరు కస్టమర్కి ఎలాంటి సపోర్ట్ ఇస్తారు? ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే మేము ఇప్పుడు మన ఆంధ్ర తెలంగాణకి ఏంటంటే మన నవత ట్రాన్స్పోర్ట్, విఆర్ఎల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉంది. అందులో మేము సేఫ్లీ మన సార్ అన్నారు కదా, ఇన్సూరెన్స్ చేసి మేము పంపిస్తాం. ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది మన వానాకాలం అయినా ఎండాకాలం అయినా ఎప్పుడైనా ఏది అవ్వకుండా మేము సేఫ్లీ దాన్ని తయారు చేసి మేము పంపిస్తాం. దాంట్లోనే ఏంటంటే మేము ఇన్సూరెన్స్ ఆల్రెడీ చేస్తాం. మీ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీ పార్సల్ అనేది మీ ఇంటి వరకు వెళ్ళినంత వరకు బాధ్యత అనేది మాదే. మన దగ్గర కొరియర్ సర్వీస్ కూడా ఉంది, ట్రాన్స్పోర్ట్ సర్వీస్ కూడా ఉంది. కానీ ఛార్జెస్ ఏంటంటే వాళ్ళు మినిమం అమౌంట్ ఛార్జెస్ వస్తాయి. ఒక 50,000 పార్సల్ అంటే 1,000 to 1,500 వరకు వస్తుంది పెద్దగా అయితే ట్రాన్స్పోర్ట్. 1,000 లోపలే రావాలి. అది డిపెండ్ అవుతుంది వెయిట్ మీద. వెయిట్ ఎంత అయితే మీ పార్సల్ దాని మీద డిపెండ్ అవుతుంది. 1,000 అంటే ఈ రోజుల్లో ఎవరైనా సరే ట్రాన్స్పోర్ట్కి పే చేస్తారు. పే చేసి అక్కడి నుంచి మీరు కలెక్ట్ చేసుకోవడమే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్ నుంచి. మీ సిటీలో నుంచి ఎక్కడైతే మీ ఇంటికి దగ్గరలో ఉందో అదే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫీస్లో మీరు కలెక్ట్ చేసుకోవాలి పార్సల్. हम ये कोशिश करते हैं, आपने 25,000-50,000 का एक पार्सल बनवाया है तो वो कैसे कम से कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के अंदर आपके पास पहुंच सके, क्योंकि सब तो कपड़े के ऊपर गिरने वाला है. कपड़े पे वो चार्ज भी कपड़े पे ऐड होने वाला है. तो हम लोग ट्रांसपोर्ट से कुरियर नहीं करते हैं. एक साड़ी तो आपको मंगवानी नहीं है, आपको तो व्यापार के हिसाब से कपड़ा मंगवाना है, आगे बेचना है. तो उसकी कॉस्ट कटिंग कितनी हो सकती है, कितना रिजनेबल रेट में हम उसको आप तक पहुंचा सकते हैं, उसका पूरा ध्यान रखते हैं. इसीलिए ट्रांसपोर्ट से कपड़ा बेचते हैं. अगर तेलंगाना की मैं बात करूं तो एक 50-60 किलो का पार्सल लगभग बनता है. एक पार्सल जिसकी वैल्यू, अगर मीडियम रेंज का कपड़ा आप खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 25 से 30 हजार रुपए की. मीडियम रेंज का कपड़ा आपने खरीदा तो वो 25-30 हजार रुपए का माल आपके पास में. तेलंगाना की बात करूं तो VRL लगभग ये समझिए आपके एरिया के अंदर उसको 1,000 रुपीज़ के अंदर 800 से 1,000 रुपए के अंदर, क्यों 800 से 1,000 रुपए के अंदर आपके पास पहुंचा देगा.
ఓకే तो आपको वहाँ से आपको लेना है पार्सल, क्योंकि डोर डिलीवरी अगर हम लोग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं। जैसे हैदराबाद में उस ट्रांसपोर्ट का जो हब है वहाँ से आपको कलेक्ट करना रहेगा, ठीक है। అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. ईजी, हाँ बहुत ईजी रहता है वो। और वही अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे तो डोर डिलीवरी चाहिए, तो जितना चार्ज सूरत से हैदराबाद आने का लगा है उससे ज़्यादा चार्ज उसका डोर डिलीवरी का ले लेगा वो कुरियर वाला। इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि कपड़े के ऊपर किसी भी तरीके से ज़्यादा कॉस्टिंग ना बढ़े, रीजनेबल रेट में आप बेच पाओ, तो ही आप उस कपड़े को ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन घुमा पाओगे। ఓకే సో మనం ఎంతైనా ఖరీదు చేయొచ్చు కానీ దాన్ని ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకున్నాము అనే దాని మీదే ఉంటుంది. అలాగే మనం ఏదైతే కొంటామో వాటి వాల్యూ కంటే కూడా మనం సరైన పద్ధతిలో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకోకపోతే కనుక ఆ వాల్యూ కంటే ట్రాన్స్పోర్ట్కే మనం ఎక్కువ పెట్టాల్సి వస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి డోర్ డెలివరీ అయితే ఎక్కువ అవుతుంది. అంటే సూరత్ నుంచి హైదరాబాద్ రావడానికి ఎంత ప్రైస్ అవుతుందో హైదరాబాద్ నుంచి మన ఇంటికి డోర్ డెలివరీ అవడానికి అంతే అవుతుంది. కాబట్టి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి కలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ని కూడా తక్కువ చేయొచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు అజయ్ గారు. సార్ ఇప్పుడు అంతా ఆన్లైన్ అయిపోయింది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇంట్లో కూర్చొని బిజినెస్ చేస్తున్నారు, ఇంట్లో కూర్చొనే వాళ్ళ బిజినెస్ ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు, అండ్ ఆర్డర్స్ కూడా చేస్తున్నారు, ఇంటికే వస్తూనే ఉన్నాయి. సో నేను స్టాక్ ఎంచుకొని నేరుగా మీ దగ్గర ఆర్డర్ చేసి నేను వాటిని పర్చేజ్ చేయొచ్చు అంటారా? देखिए, अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि भाई आप एक बार विजिट करें वहाँ पे, फर्स्ट टाइम जाकर के वहाँ सब कुछ देखें, ओके वहाँ समझें पूरा। नया बिजनेस कर रहे हैं, आप ऑलरेडी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो कोई इशू नहीं है। आप हमारी टीम है पूरी, आपको सेल्समैन का नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, वो आपको वीडियो कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पीडीएफ वगैरह भेज देगा पूरा, या फिर आपको वीडियो कॉल से पूरा स्टॉक सेलेक्ट करवा देगा, आप उसमें से खरीदी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बस ध्यान रखें कि फर्स्ट टाइम आप कपड़े के बिजनेस में उतर रहे हैं, नए, आपको आज तक आपने कभी कपड़े का बिजनेस किया नहीं है, टेक्सटाइल का टी भी नहीं मालूम है आपको, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप किसी का भी वीडियो देखें, चाहे अजमेरा फैशन का आप देख रहे हैं, मैं एनविजन को थैंक यू करता हूँ, एन वीडियो को, कि उन्होंने मुझे मौका दिया है अपनी बात को व्यूअर्स तक पहुँचाने का। हो सकता है आप और किसी का भी वीडियो देख रहे हों, किसी भी मैन्युफैक्चरर का वीडियो देख रहे हों, लेकिन फर्स्ट टाइम आप अपने आप को टेक्सटाइल बिजनेस से अगर जोड़ रहे हैं तो वहाँ जाइए, देखिए, समझिए, ट्रस्ट आता है आपको वहाँ पे, तब आप उनसे जुड़ जाइए, उनसे बिजनेस कीजिए। नेक्स्ट टाइम आप जब ऑर्डर करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 25,000 या 50,000 रुपए का ऑर्डर करना है, आप फिर इतना खर्चा करके तो वापस वहाँ नहीं आएंगे ना 5,000 रुपया खर्च करके, क्योंकि वो कॉस्टिंग उसी पे पड़ने वाली है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारा जो सेल्समैन आपके साथ था उसका नंबर हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, वो आपको नंबर दे देगा, आप उसको बोलिए मुझे ये रेंज की रिक्वायरमेंट है, मुझे साड़ी की रिक्वायरमेंट है, या मुझे कुर्ती की रिक्वायरमेंट है, या मुझे ड्रेस मटेरियल चाहिए, जो भी कपड़ा आपको चाहिए वो कपड़ा आपको वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से दिखा देगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और मैंने बताया है आपको, जब तक कपड़ा आपके पास पहुंच नहीं जाता है तब तक हमारी लायबिलिटी है, हमारी जवाबदारी है, हम इंश्योरेंस करके कपड़ा भेजते हैं। किसी भी तरीके का रास्ते में कोई दुर्घटना आपके कपड़े के साथ, आपके पार्सल के साथ होती है तो हम आपको या तो नया पार्सल देंगे, नहीं तो आपको पैसा रिफंड करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस उसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है वो आपको पे करना है, और वो भी वहीं पे करना है जब आपके पास कपड़ा पहुंचेगा। రెండు కళ్ళతో వెళ్ళి చూసి కొనడం వేరు, ఆన్లైన్లో కొనడం వేరు. ఆన్లైన్ మోసాలు మనం చాలా చూస్తూనే ఉన్నాం. బట్ అక్కడ ఒక కలర్ ఉంటుంది, వచ్చే దగ్గరికి ఇంకో కలర్ మారిపోతూ ఉంటుంది. బట్ అవి కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఇస్తున్నారంటే చాలా గ్రేట్ నిజంగా. అంటే చెప్పండి మ్యామ్, మోసం అంటే ఒకటి నాకు గుర్తొచ్చింది. ఇప్పుడు మీరు ఆన్లైన్ ఆర్డర్ పెట్టుకుంటారు కదా, పేమెంట్ చేసినప్పుడు మా కంపెనీ అకౌంట్ మీదే మీరు పేమెంట్ చేయాలి. పర్టికులర్ ఇండివిజువల్ అకౌంట్ వస్తే దానికి పేమెంట్ చేయకూడదు, ఇది అనేది మెయిన్ పాయింట్. ఓకే, కంపెనీ అకౌంట్ మా ఆన్లైన్ సేల్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మీకు జనరేట్ చేస్తారు, దాంట్లోనే మీరు పేమెంట్ చేయాలి. ఇది పర్టికులర్ నా దగ్గరనే కాదు, ప్రతి దగ్గర మార్కెట్లో ఎక్కడ కొన్నా సరే ఇదొకటి మీరు రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎవరిదైతే ఫర్మో ఏ పేరు మీద అయితే డీటెయిల్స్ ఉన్నాయో అదే పేరు మీద ఆ కంపెనీ అకౌంట్ డీటెయిల్స్లో చేస్తే మంచిది, ఫ్రాడ్ నుంచి మీరు బయటపడగలరు. ఓకే, दो चीज़ें होती हैं।
पेमेंट का फ्रॉड भी हो जाता है तो आप कंपनी के अकाउंट में करें। जैसे अजमेरा फैशन लिमिटेड है, ये अकाउंट कोई दूसरा नहीं खोल सकता है क्योंकि लिमिटेड कंपनी Yes, है, yes, yes. है ना। दूसरी चीज, आप जो ये आप सेलेक्ट करते हैं ऑर्डर, तो आपको कोई मैनुअली बना के दे देता है ऐसे ही, ये इतना पैसा, नहीं, कभी भी नहीं। आपको कंप्यूटर जनरेटेड बिल चाहिए, उसके अंदर जो टैक्स जो अमाउंट होती है वो सब उसके अंदर पूरी होनी चाहिए। कोई मैनुअली बना के आपको दे दिया ये 20,000 25,000 रुपया हुआ, ये पे कर दीजिए, नहीं, वो ट्रस्ट कभी भी नहीं करना है। कंप्यूटर जनरेटेड बिल मुझे चाहिए, उसके बाद मैं पेमेंट करूंगा आपका, उस पे टैक्सेबल, इट्स अ कस्टमर राइट। हाँ, कस्टमर राइट। और उसमें टैक्स जो होता है जीएसटी होती है, जीएसटी नीचे इंक्लूड है कि नहीं है, ये चीज आप देखिए। आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीएसटी तो आपको पे करना ही करना रहेगा। कोई ये बोलता है आपको कि चलिए मैं आपको बगैर जीएसटी दे दूंगा, नहीं भैया नहीं, गवर्नमेंट के टैक्सेस तो मुझे 100% पे करने हैं, मैं उसमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें। वो अगर गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड कर रहा है कोई ऐसा, तो वो आपके साथ भी फ्रॉड कर सकता है। तो इसके लिए कंप्यूटर जनरेटेड बिल चाहिए जिसमें टैक्स की जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। कंपनी के अकाउंट के अंदर पेमेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर पेमेंट नहीं होना चाहिए। कोई बोले मैं अजमेरा फैशन से बोल रहा हूँ या किसी फलानी कंपनी से बोल रहा हूँ, ये मेरा नाम है, आप इस अकाउंट के अंदर डाल दीजिए, नो, वो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो ऐसा ना करें। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, अजमेरा फैशन लिमिटेड का ही अकाउंट नंबर दिया जाता है, उसी में आपको पेमेंट करना रहता है। अगर कोई और आपके साथ ऐसा करता है तो बी अवेयर, सावधान रहिए, आपको इंडिविजुअल अकाउंट में पेमेंट नहीं करना चाहिए। నా ఇప్పుడు అజ్మీరా ఫ్యాషన్స్లో 200 పైగా ఫ్రాంచైజీస్ ఉన్నాయి అండ్ చాలా మందికి మీరు ఫ్రాంచైజీస్ని ఇస్తూనే ఉన్నారు అండ్ మీ దగ్గరకు వచ్చే వాళ్ళు కూడా సేల్స్ జరుగుతూ ఉన్నాయి. సో ఈ జర్నీని ఎలా చూస్తారు अजय जी? फ्रेंचाइजी की जर्नी की बात करें मैम, तो एक्चुअली हम जब कपड़ा बेचते थे तो एक ब्रांड पे ट्रस्ट बन जाता है कस्टमर का। ओके, तो वो बोलता है कि हमको आकर के उसने बोला, कोरोना के जस्ट पहले हमारे पास में बहुत अच्छी डिमांड थी, लोग बोलते थे सर आपका नाम हम अपनी शॉप पे लगा सकते हैं क्या? तो वो तो पॉसिबल नहीं था ना, अजमेरा तो कैसे लगा सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर हमें आप फ्रेंचाइजी दे दीजिए, आपकी फ्रेंचाइजी हम रख लेंगे वहाँ पे। लेकिन हमें रिटेल का अनुभव नहीं था। अब एक रिटेलर कैसे हम तो मैन्युफैक्चरर, हमें तो आइडिया नहीं कि सिंगल पीस कैसे बेचा जाता है। तो हमने क्या किया, 2020 जब कोरोना आया था उसके जस्ट पहले हमने अपना एक आउटलेट चालू किया लखनऊ के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमें देखना था कि रिटेल में क्या क्या हर्डल्स आते हैं, क्या क्या परेशानियां आती है। तो हमने एक रिटेल आउटलेट चालू किया, 5,000 स्क्वायर फीट का एक शोरूम बनाया, वहाँ पे सिंगल पीस बेचना स्टार्ट किया। तुरंत कोरोना आ गया, अयो 2 महीने कोरोना के निकल गए, फिर भी स्टार्ट नहीं हो पाया। कोरोना की वैक्सीन आने में 18 महीने लग गए थे, 12 महीने लग गए थे, टफ चैलेंज, बहुत टफ चैलेंज था। फिर थोड़ा सा रनिंग बिजनेस स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट कोरोना आ गया 2021 के अंदर, फिर 2 महीना बंद। हमने यूपी में किया अपना स्टोर, खुद का स्टोर, ओन स्टोर करके देखा। ओके, जब हमने 3 साल उस स्टोर को चलाया तो सारे हर्डल्स फेस कर लिए हमने। कोरोना जैसा हर्डल फेस कर लिया तो और क्या हर्डल्स आ सकता है। तब हमें एक रिटेल का अनुभव हो गया कि सिंगल पीस किस तरीके से बेचा जा सकता है, एक रिटेलर को क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, सारी हमने पॉइंट्स बना लिए, सब कुछ फेस कर लिया उसको। तब हमने 2023 से फ्रेंचाइजी स्टोर्स बेचना स्टार्ट किया। अच्छा, लोगों को बोला कि अब हम अपना अजमेरा फैशन, अजमेरा ट्रेंड्स के नाम से हम आपको फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। तब ये फ्रेंचाइजी की जर्नी स्टार्ट हुई। आज हमारे 2 फ्रेंचाइजीज हैं, एक अजमेरा ट्रेंड्स के नाम से जिसमें पूरा फैमिली स्टोर आता है, और एक किड्स वियर आता है अलग से जो हमारा लिटिल विंग्स के नाम से। वो दोनों फ्रेंचाइजी आज हम लोग देते हैं। ओके, पिछले 3 साल के अंदर लगभग 200 प्लस हमने अजमेरा ट्रेंड्स के आउटलेट्स चालू किए हैं। और लिटिल विंग्स की अगर बात करें तो अभी 6 महीने 8 महीने पहले ही चालू किया अच्छा, है, ओके। और 13 स्टोर्स रनिंग है। और आने वाले समय में हमारी उम्मीद है, टोकन्स हमारे पास बहुत सारे आए हुए हैं, लेकिन हमारी टीम जाती है वहाँ पे, चेक करती है कि उसका ROI
सही मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, उसने जो पैसा इन्वेस्ट हमारे अंदर किया है क्या उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उसको अच्छे से मिल पाएगा। हमारी टीम जाती है वहाँ, देखती है उसकी लोकेशन कैसी है, वहाँ के आजू बाजू का माहौल कैसा है, वहाँ के आजू बाजू कितने लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनका बिजनेस सक्सेसफुल चल रहा है, कितना कंपटीशन है, हर चीज़ उसके ऊपर वॉच रखी जाती है। फिर एक ASM उनको दिया जाता है, एरिया सेल्स मैनेजर उनको दिया जाता है, तब जाके हम फ्रेंचाइजी उनको अलॉट करते हैं और फिर वो रनिंग धीरे धीरे होती है। तो ये अभी जो और 500 स्टोर्स हम लोग देने वाले हैं, जिनके टोकन्स हमारे पास आए हैं, उनमें से हो सकता है कुछ कैंसिल हो जाए, हमारी टीम जाकर के रिजेक्ट कर दे कि नहीं इस लोकेशन पे नहीं चलेगी, आप दूसरी लोकेशन देखिए। तो आने वाले समय में हम 2027 तक हमारा उम्मीद है कि 500 स्टोर्स टारगेट हमारा टारगेट है। ఓకే, నేను అజ్మీరా ఫ్యాషన్స్ అవుట్లెట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో నాకు ఎటువంటి టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ కావాలి, పేమెంట్ మెథడ్ ఎలా ఉంటుంది, సో మీ త్రూ ఒక పెద్ద షాపింగ్ స్టోర్ నేను పెట్టుకోవాలనుకుంటే నాకు ఎటువంటి షరతులు ఉంటాయి? ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने ऐसा सोचा है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे लिए। लेकिन कोई भी ऐसा सोच सकता है, सोचने के साथ उसको थोड़े टर्म्स कंडीशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। उन टर्म्स कंडीशन के हिसाब से हम उनको फ्रेंचाइजी के लिए चूज़ करते हैं कि हाँ आप हमारे नाम को ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। उसके टर्म्स कंडीशन में अगर मैं बात करूँ तो कुछ एरिया होता है, अलग अलग मॉडल्स है, A मॉडल, B मॉडल, C मॉडल, D मॉडल, इस तरीके के। तो मिनिमम 300 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट से लेकर के 300 का मिनिमम जगह उनके पास स्पेस होनी चाहिए, वो चाहे रेंट की हो चाहे अपनी हो, दोनों कुछ भी चलती है। फिर हम लोकेशन वगैरह चेक करते हैं, हमारी टीम आती है। सपोर्ट की अगर बात करें, उनको आपको क्या सपोर्ट्स हम दे सकते हैं, तो हम ट्रेनिंग देते हैं पूरी। आप जब वहाँ आएंगे तो आपकी ट्रेनिंग रहेगी 3 दिन की कि किस तरीके से आप कपड़े को 3 days. बेचें। 3 डेज की ट्रेनिंग रहती है। और सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करते हैं आपको, गुड्स वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं आपको। आपका इंटीरियर कैसा रहेगा, हमारी तरफ से आर्किटेक्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप अगर चाहें कि मेरा आर्किटेक्ट है मैं उससे बनवाऊंगा तो भी आप बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन डिज़ाइन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, उसका 3D मॉडल हम बना करके आपको देंगे कि इस तरीके का इंटीरियर होना चाहिए, वो आप खुद बनवा सकते हैं। अपने यहाँ के जो भी कारपेंटर वगैरह हैं उनसे आप बनवा सकते हैं। प्लस अलग अलग मॉडल में अलग अलग स्क्वायर फीट तो रहते ही रहते हैं। ट्रेनिंग का पार्ट मैंने आपको बता ही दिया। बाकी डिटेल्स अगर आप डीपली इसमें जाना चाहते हैं तो हम फ्रेंचाइजी का एक नंबर है हमारा अलग से, उस फ्रेंचाइजी पे नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको पूरी गाइडलाइन सब कुछ हमारी टीम समझा देगी। एक एक चीज़, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कौन सा मॉडल लेना चाहते हैं, आप क्या प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आपको हमारी टीम बता देती है। एक चीज़ की जानकारी सिर्फ आपको देना चाहता हूँ कि ये FOFO मॉडल्स रहते हैं, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन। आप ही की मालकियत रहेगी और आप ही के ऑपरेशंस रहेंगे वहाँ पे। हम सपोर्ट करेंगे तो आपको प्रोडक्ट वाइज सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग वाइज सपोर्ट करेंगे, हम आपको सॉफ्टवेयर वाइज सपोर्ट करेंगे। हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ERP जो रहती है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड कर दी जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सपोर्ट करते हैं। उसके बाद मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। Yes, yes. आपके एरिया के अंदर एक अजमेरा ट्रेंड्स का आउटलेट खुला है, इस चीज़ की मार्केटिंग हम वहाँ से हेड ऑफिस से करते हैं पूरे आपके एरिया के लिए। सराउंडिंग जहाँ तक के कस्टमर आपके पास आएंगे वो पूरी चीज़ हमारी टीम वहाँ से मैनेज करती है। అజయ్ జీ, ఈ రోజుల్లో సామాన్య మహిళలు లైక్ హౌస్ వైఫ్స్ ఇంట్లో ఉండే అన్నీ చక్కబెట్టగలరు, అన్నీ చేయగలరు, బట్ వాళ్ళకంటూ ఒక వే తెలియదు, ఎలా వెళ్ళాలో తెలియదు. అలాంటి వాళ్ళు కూడా వ్యాపారం చేయాలనుకుంటే అండ్ మీరు దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా నిలుస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎంతోమంది సాధారణ మహిళలకి మీరు అవుట్లెట్లు ఇచ్చి వాళ్ళ ఒక సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రీనర్స్గా మారుస్తూ ఉన్నారు. సో ఒక సాధారణ మహిళకి అజ్మీరా ఫ్యాషన్తో వ్యాపారం చేయాలి అనుకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఆమె ఏం చేయాలి? देखिए, ऐसे तो महिलाओं के अलावा कोई भी अजमेरा फैशन से जुड़ सकता है बिजनेस करने के लिए। चाहे वो एक होलसेलर हो, चाहे वो एक रिटेलर हो, चाहे वो फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो, या फिर महिलाएं हो। वुमेन एम्पावरमेंट को हम बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने हमेशा आपको बोला है ये बात। एक महिला अगर बिजनेस करना चाहती है तो उसके लिए सपोर्ट ये है कि भाई सबसे पहली चीज़
उसको रिजनेबल रेट के अंदर कपड़ा हम दे सकते हैं। ठीक है, वो घर से अगर बिजनेस करना चाहे तो शुरुआत कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। वो मिनिमम अमाउंट 25,000 रुपीज, जितने में आजकल एक मोबाइल आता है मैम, मोबाइल भी नहीं आता है शायद इतने रुपए का, तो आजकल 30,000। आईफोन की बात करें आईफोन की तो 150 1.590 इतना आता है। तो मेरा यही कहना है कि भाई अगर आप एक महिला हैं और आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं तो अजमेरा फैशन आपके सपोर्ट में हमेशा खड़ा है। हर तरीके से हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन के ऊपर हम दे देंगे आपको, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए। हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि आपके एरिया में कौन सा कपड़ा बिकता है, कौन सी रेंज आपको रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक 25,000 50,000 रुपए से स्टार्ट करने वाली लेडीज थोड़ा सा वुमेन्स वियर का माल ला के रख ले, थोड़ा सा मेंस वियर का ला के रख ले, थोड़ा सा किड्स वियर का रख ले, नहीं, कभी नहीं। आपको 1 या 2 प्रोडक्ट के साथ जाना पड़ेगा। आप वुमेन्स वियर से स्टार्ट करें क्योंकि आप खुद यूज करते हैं वो प्रोडक्ट, तो उनकी जानकारी आपको बहुत ज़्यादा है। एक मैन्युफैक्चरर से भी ज़्यादा जानकारी आपको है क्योंकि आप खुद यूज करते हैं उसको। तो आप उस प्रोडक्ट को लेकर के स्टार्ट करें और धीरे धीरे आप उसको बढ़ाएं। मुझे फक्र होता है बताते हुए, गर्व है अपने आप को, अपने आप के ऊपर कि आज हमारे साथ 10,000 से ज़्यादा महिलाएं हमारे साथ जुड़ करके इस बिजनेस को स्टार्ट की है। और उस 10,000 महिलाओं में से 200 प्लस लेडीज ऐसी होंगी जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट तो घर से किया था 25-50 हजार या लाख रुपए लगा करके, लेकिन आज वो बड़ी शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं अपने बिजनेस को, और घर का कोई जेंट्स भी उनके साथ इन्वॉल्व है और वो मेन अर्निंग पर्सन बनी हुई है अपने घर की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। సో ఏదైనా బిజినెస్ అనగానే ఆ పదం చూడగానే ఒక రకమైన ఫియర్ వస్తుంది. చాలామంది భయపడిపోతూ ఉంటారు, వెనకడుగు వెయ్యాలా వద్దా, ఇది ఒక రిస్క్తో కూడినటువంటి సిచ్యువేషన్, దట్టు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టాలి, అది వస్తుందో రాదో తెలియదు, దాన్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలో తెలియదు, ఎట్లా మార్కెటింగ్ చేసుకోవాలో కూడా తెలియదు. అండ్ చాలామంది వ్యాపారం అనగానే వెనకడుగు వేయడానికి కారణాలు అవి, దట్టు ఫ్యామిలీ మెంబర్ సపోర్ట్ కొంతమందికి ఉండదు. ఎందుకు మనకి ఇలానే వెళ్ళిపోదాం అనే ధోరణి చాలా మందిలో ఉంటూ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే మెసేజ్? देखिए, सेफ जोन तो छोड़ना पड़ेगा। आप नौकरी कर रहे हैं, हर महीने आपके हाथ में मोबाइल रहता है, 31 को एक मैसेज आता है आपके पास, क्रेडिट 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया। लेकिन क्या वो आपकी जिंदगी बदल सकता है? क्या वो आपके सपने पूरे कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि बिजनेस एक ऐसे मुकाम पे आपको पहुंचा सकता है जहां आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंचूंगा। अगर मैंने वो सेफ जोन छोड़ के वो रिस्क नहीं ली होती तो आज मैं वही नौकरी कर रहा होता। जो 2 लाख रुपए मिल रहे थे वो शायद 5 लाख हो जाते, 7 लाख हो जाते। लेकिन एक इतने बड़े मुकाम के ऊपर इतना बड़ा एक ब्रांड अगर मेरा बना है तो वो मैंने रिस्क लिया। इसीलिए उस रिस्क में बहुत सारी चीज़ें रहती है। वो सेफ जोन आपको छोड़ना पड़ता है। आपका परिवार आपको बोलेगा क्या ज़रूरत है, इतना अच्छा पैसा तो मिल रहा है, क्यों छोड़ रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क है तो इश्क है। वो पिक्चर है ना 1992, स्केम 1992। तो रिस्क लेना पड़ेगा कभी भी। ये जीवन ही रिस्क है मैम। आप यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, आप चल बसे, पल का भरोसा नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अगले ही पल हो सकता है ना। तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम घर से बाहर निकले ही नहीं, हमें रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। రైట్. మరి ప్రజెంట్ అజ్మీరా ఫ్యాషన్ అనేది ఒక కంపెనీ కాదు, ఇది వేలాది కుటుంబాలకి అవకాశాలను కల్పిస్తోంది. సో మీరు కూడా అజ్మీరా ఫ్యాషన్లో ఒక భాగం అవ్వాలనుకున్నా, అక్కడ మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకున్నా, లేకపోతే ఒక అవుట్లెట్ని తీసుకొని మీరు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా బట్టల వ్యాపారం చేయాలనుకుంటే కనుక ఆ కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్కి కాల్ చేస్తే అక్కడున్న వాళ్ళ ఏజెంట్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీకు ఎటువంటి లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ లేకుండా, ఎటువంటి కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ లేకుండా మీకు ప్రతి డౌట్ని చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ప్రతి దాన్ని కూడా చాలా బాగా చూపిస్తారు. అండ్ ఫస్ట్ టైం వ్యాపారం చేయాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఒకసారి సూరత్ వెళ్ళి వచ్చి, లేకపోతే ఇక్కడున్న అవుట్లెట్కి వెళ్ళి ఆ క్వాలిటీని కూడా చెక్ చేసుకొని మనం
కరెక్ట్గా వేలో వెళ్తున్నామా లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఫుల్ 100% కాన్ఫిడెన్స్తో ఎన్ని డ్రాబ్యాక్స్ లేకుండా హ్యాపీగా మీరు అజ్మీరా ఫ్యాషన్ అవుట్లెట్ తీసుకొని మీ బిజినెస్ని రన్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళి మీరు డైరెక్ట్గా పర్చేస్ కూడా చేసుకోవచ్చు, ఆన్లైన్లో సేల్స్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో మొత్తానికి ఇవాళ ఎపిసోడ్లో అయితే చాలా విషయాల్ని చాలా క్లియర్ కట్గా చెప్పారు. సో దేనికి మోసపోకూడదు, ఎలా పర్చేస్ చేసుకోవాలి, ఎలా పేమెంట్ చేయాలి, ఎలా మన ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసుకొని ఇంటికి తెచ్చుకోవాలి, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జీలు కూడా ఎలా తగ్గించుకోవాలి, ఇలాంటి విషయాలన్నీ కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు. ఇంకా ఈ ఎపిసోడ్ చూసిన తర్వాత కూడా ఇంకా మీకు డౌట్స్ ఉంటే కనుక స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా మీరు క్లియర్ చేసేసుకోవచ్చు. చూసారు కదా, ఇది ఇవాళ మన బిజినెస్. చూస్తూనే ఉండండి.